Dear student, good afternoon everybody. Today I'm going to tell you first of all what you are supposed to do during this semester, and then I will be telling you how to read scientific paper, because ultimately at the end of the day you will have to read, you will have to do literature review, and while doing literature review आप लोगों को पता मतलब समझना चाहिए कि वो scientific paper कैसे read किया जाता है. Okay, so first of all I will go to those slides what is expected in this semester. Okay, this is course structure of our MSc physics. If you look at this is semester 1. If you look at this paper PHYF 115, which is research methodology, I taught you this course during first semester. The ultimate objective was to make the student aware about different methods of research, importance of research, what research is all about, what research literature review is, how to do it, how to formulate hypothesis, and how to conduct research. Okay, for that purpose we have conducted these theory lectures during semester 1, and you have got good score in that paper as well. Now what is expected in semester 2? In semester 2, if you look at this last paper, PHYR 31, this is research project part 1. Okay, now during semester 2, you have got very limited time now, because this is 15th of July, and most likely by this month end, or maybe in the first week of August, your semester end examination for these semesters are going to be organized. So you have only 15 days to go. So during these 15 days, what you have to do? You have to do literature review of research project and formulate the topic of your research project. For that purpose, it is a 2-credit course. So this is research project part 1. It means during this semester, you will have to do review of literature and formulate your topic of research. This is what you are expected to do during this semester. Now, how to do this, I'm going to tell you today. And during this another 15 days to go, you will have to do this particular exercise. Now in semester 3rd, क्या expected है आप लोगों से? जो semester 2 में जो आप research project final करोगे, you will be working on that project in semester 3. आप अगर आखिरी रो अगर देखोगे, HYR 331, this is research project part 2, experimental work. It means now you will be working experimentally. You will be working in the lab. You will be doing some experiment and taking some observation, plotting the graph, and all those things they will have to do in semester 3. And semester 4, like this would be a part 3, research project part 3. In semester 4, what you have to do? Whatever result you will be having, you will have to interpret those results properly, write your dissertation, the report of your project. Dissertation means report of your project, and make a presentation ready for making final presentation. So like that, this entire research aspect is distributed during the 4th semester. Semester 1 theoretical हमने बताया. Semester 2 में जो आपने first semester में जो theoretical पढ़ाई आपने की, उसको आपको actual में literature review करके, क्योंकि हमने semester 2 में first में आपको बताया था कि literature review कैसे किया जाता है, how to read the paper, right? ये सब आपको बताया था semester 1 में. अभी आपको वो करना है. And semester 3rd and 4th would be doing actual experimental experiment, interpretation of result, and writing dissertation and presentation. Now, during semester 2, आपको क्या करना है? सबसे पहले number 1, selection of broad topic. To begin with, you will have to select broad topic. जब आप broad topic select करोगे, then you will have to read fundamental of that topic, understanding the topic, right? कि जैसे कि मान लो आपको बाय सेंसर या गैस सेंसर चूज किया ब्रॉड टॉपिक, तो आपको क्या करना है? वो टॉपिक के फंडामेंटल्स कुछ आपको डाउनलोड करने हैं अलग अलग रिसोर्सेज से. आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ऑफ द टॉपिक विच यू विल बी कंसिडरिंग, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू डू लिटरेचर रिव्यू. उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको लिटरेचर रिव्यू करना है इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे. ये मैंने पहले बताया था, लेकिन अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. And then next would be fine tuning of topic. On the basis of literature review, you will be able to fine tune your topic. पहले broad topic होगा, उसके बाद में आपको उसको fine tune करना है. And then based on the literature review, you will have to write hypothesis. Based on hypothesis, you will have to write objectives. Hypothesis क्या है? Hypothesis में
First paragraph would be you will be making statement that what you are going to do. In second paragraph, you will be writing like what you will be expecting in your research project. You will be anticipating क्या result आपको मिलेंगे. And in third paragraph, you will be giving some technical justification कि जो काम आप करना चाहते हो, जो result आप expect कर रहे हो, क्यों कर रहे हो result expect. That would be in third paragraph. So there would be 3 paragraphs in the hypothesis. And then based on that, there would be objectives. राइट सेटअप ऑब्जेक्टिव्स मतलब एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हो ये एंटायर प्रोजेक्ट में. एंड देन मेथोडोलॉजी विल बी मेथोडोलॉजी मींस द मेथड व्हिच यू आर गोइंग टू यूज टू रीच टू योर ऑब्जेक्टिव. जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए थे वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट करेंगे दैट यू विल हैव टू राइट इन मेथोडोलॉजी. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड आउटकम. सो व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट. हाइपोथेसिस में जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो सेम पैराग्राफ यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट. एंड देन रेफरेंसेस, जो भी किताबें आपने रेफर की है, जो भी रिसर्च पेपर आपने रेफर किए, दोस रेफरेंसेस यू विल हैव टू राइट. नाउ एग्जांपल बताता हूं. जैसे कि सबसे पहले क्या है, ब्रॉड टॉपिक आपको चूज करना है. सो लेट अस से यू हैव चोजन ब्रॉड टॉपिक एज ए गैस सेंसर. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट इज सेंसर ये पढ़ना है. व्हाट आर द टाइप ऑफ सेंसर्स, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स, व्हाट आर गैस सेंसर. क्योंकि गैस सेंसर में आप काम करना शुरू किया तो आपको पता होना चाहिए गैस सेंसर क्या है. इंपॉर्टेंस ऑफ गैस सेंसर, व्हाट आर डिफरेंट मोडालिटीज व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन गैस सेंसर, व्हाट आर डिफरेंट मटेरियल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन गैस सेंसर, व्हाट आर केमिरेजिस्टिव एंड केमफेक्ट मोडालिटीज. क्योंकि हमारे रिसर्च सेंटर पे वी आर फोकसिंग ऑन केमिरेजिस्टिव एंड केमफेक्ट मोडालिटी. इसलिए मैंने आपको वीडियोस दिए थे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च वी आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर हैविंग. वो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप प्रॉपर टॉपिक चूज नहीं कर पाओगे. दैट इज व्हाई यू नीड टू नो what are the chemi-resistive and chemical modalities and application of gas sensors. तो ये सब आपको ब्रॉड टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा पहले अगर गैस सेंसर पे आप काम करना चाहो तो. दूसरा हमारा ब्रॉड एरिया है इस सेंटर में हेवी मेटल आयन सेंसर. इफ यू वांट टू वर्क ऑन हेवी मेटल आयन सेंसर, आपको पता करना पड़ेगा कि why heavy metal ion sensors are important, what is basically heavy metal ion sensor, what are heavy metal ion sensor, क्या मटेरियल है हेवी मेटल आयन सेंसर्स के लिए हम यूज करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मोडालिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ हेवी मेटल आयंस फ्रॉम वाटर एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस. तो हमारे सेंटर में वी आर हैविंग टू ब्रॉड थ्रस्ट एरियाज, वन इज गैस सेंसर, अदर इज हेवी मेटल आयन सेंसर. आपको चूज करना है दो में से कोई एक एंड डिसाइड करना है कि क्या करना है, उसके फंडामेंटल्स आपको रीड करने हैं. एंड देन लिटरेचर रिव्यू की जब बात मैं कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू इन दिस सेमेस्टर, यू विल हैव टू डू लिटरेचर रिव्यू. तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, यू हैव टू आइडेंटिफाई 10 बेस्ट जर्नल्स. मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे कि जर्नल के क्या मायने होते हैं, व्हाई लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई गुड जर्नल्स, राइट. देयर आर सम क्राइटेरियाज, देयर आर 4 to 5 क्राइटेरियाज आई टोल्ड यू. लाइक उसका इम्पैक्ट फैक्टर है, 5 year इम्पैक्ट फैक्टर है, साइमागो फैक्टर है, right, SNEEP है. So there are different parameters which can be taken care of for identification of best journal. तो आपको कितने 10 best journal identify करना है in the area in which you are going to work, right. Those journals should be all Scopus and Web of Science Index journal. जिस एरिया में आप काम करना चाहते हो उस एरियाज के उस ब्रॉड एरिया में आपको 10 जर्नल्स सबसे पहली स्टेप होगी आइडेंटिफाई करना. एंड देन यू विल हैव टू डू लाइक लिटरेचर रिव्यू में क्या करना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेटस. नेशनल का मतलब क्या है कि दोज टीचर्स, दोज रिसर्चर्स वर्किंग इन इंडिया. तो आप कम से कम 5 पेपर आपको उस टाइप के ढूंढने हैं कि जो पेपर्स जिसमें इंडियन रिसर्चर ने काम किया है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन एनवायरमेंट में काम किया है, राइट. एंड आप देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है. तो जब आप 5 पेपर डाउनलोड करोगे तो उसमें से क्या पढ़ोगे आप, यू विल बी going through this paper and you will be able to, you need to understand what are their objectives, what kind of methodology they have used, what kind of tools and characterization techniques they have used for interpretation of their results, what are their main findings, what kind of shortcomings they have in their investigation. This is very very important. सबसे पहले आप क्या करेंगे, objectives क्या है, methodologies क्या है, क्या अडॉप्ट की उन्होंने, क्या क्या materials उन्होंने यूज किए, जो मटेरियल उन्होंने बनाए होंगे, क्या टूल्स, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक उन लोगों ने यूज किए डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, एंड उनके मेजर फाइंडिंग्स क्या है.
एंड एट द एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई शॉर्टकमिंग्स, क्योंकि जब तक आप शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आपको जो है नॉवेल्टी नहीं ढूंढ पाओगे आप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू रियली वांट टू पब्लिश योर पेपर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जब एमएससी में प्रोजेक्ट करोगे, एट द एंड ऑफ योर एमएससी प्रोजेक्ट यू शुड बी एबल टू पब्लिश योर डेटा इन गुड जर्नल, because I know in one of my research student very recently, she published one research paper, two research paper during her MSc, and she got opportunity to do PhD in South Korea. Very recently she went to South Korea during this pandemic, also she went to South Korea. तो आप लोग अगर publication करोगे during MSc project, you are most likely going to get opportunity to work in foreign countries for doing PhD. तो ये आपको नेशनल लेवल पे करना है। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल के 5 पेपर्स आपको डाउनलोड करने हैं। कौन से जर्नल से? जो मैंने ऊपर जो 10 जर्नल आइडेंटिफाई करने के लिए बोले वो जर्नल से। एंड देन इंटरनेशनल मतलब क्या है? जो भारत के बाहर के लोग, इंडिया के बाहर के लोग, आउट ऑफ कंट्री, जो उस एनवायरमेंट में जिन लोगों ने काम किया, उन लोगों के आपके 5 पेपर आपको डाउनलोड करने हैं। एंड देन अगेन यू विल हैव टू सी सेम थिंग, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, मटेरियल्स, कैरेक्टराइजेशन टूल्स क्या यूज किए, उनके मेन फाइंडिंग्स क्या है, व्हाट काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग्स दे हैव, एंड सो ऑन सो फोर्थ. दिस यू हैव टू डू फॉर नेशनल पेपर्स एज वेल एज इंटरनेशनल पेपर. 5 नेशनल लेवल के पेपर डाउनलोड करने हैं, 5 इंटरनेशनल लेवल के 10 पेपर का आपको लिटरेचर रिव्यू करना है. ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लो ये पेपर है, रिसर्च पेपर, आपको देखना है कि किस जर्नल का पेपर है, टाइटल क्या है उस पेपर का, ऑथर्स कौन है, उनका एप्लीकेशन क्या है, एंड देन यू विल बी रीडिंग अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सब आप पढ़ोगे. वो कैसे करना है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर. जैसे कि एक पेपर, जैसे कि मान लो आपने पेपर पढ़ा, उससे पहले, उसके बाद सबसे पहले ये नोट्स आपको निकालने हैं. क्या क्या निकालोगे आप? टाइटल ऑफ द पेपर क्या है, टाइटल ऑफ द पेपर, नॉट पेपर्स. जैसे कि मान लो ये उसका टाइटल था, व्हाट आर द नेम ऑफ ऑथर्स, उनके एप्लीकेशन क्या है. एप्लीकेशन इसलिए आपको जानना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि वेदर यू आर कंसिडरिंग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल लिटरेचर रिव्यू. देन नेम ऑफ द जर्नल, क्या नेम ऑफ द जर्नल है, उसके साइटेशन डिटेल्स, ये सब आपको नोट्स के तौर पे निकालने हैं वंस यू रीड द पेपर. दीज आर द, आई मीन, prominent. You have to do lot more thing, but prominently you will have to do this. And then whenever you will be writing literature review, on the basis of that, this is how you have to write for each paper. मतलब जितने भी 10 पेपर आप लिखोगे ना, निकालोगे, तो आउट ऑफ, फॉर ऑल 10 पेपर्स यू विल हैव टू राइट द पैराग्राफ लाइक दिस. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ बता रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम द सेम पेपर. यहाँ इस पेपर, ये पेपर को पढ़कर मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, जैसा आपको लिखना है. व्हाट इज दैट? लाइक शिरसाट एटल. एटल का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑथर्स, राइट? ET स्पेस AL, इसका मतलब ये होता है कि शिरसाट इज द फर्स्ट ऑथर एंड देयर आर मेनी मोर ऑथर. Have reported chemiresistive sensor array for detection of VOCs by using porphyrin functionalized single wall carbon nanotube. मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है कि उन्होंने क्या किया? They have aligned SWNTs across 3 micron gap on SiSiO2 substrate by using AC electrophoretic alignment, and then SWNTs were modified by porphyrin using solvent caustic method. मतलब यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो उन्होंने एग्जैक्टली कैसे क्या क्या किया है. They have used array of 16 sensors to detect various VOCs by using chemiresistive modalities. मतलब जो डिटेक्शन सेंसर का जो किया उन्होंने, किस मोडालिटी में किया, कितने सेंसर्स थे, that we are trying to explain here. And then about result, they have also used PCA to study selectivity of proposed sensor array and shows excellent VOC discriminating capabilities of sensor array. मतलब उनको क्या prominent reason यहाँ पर बताने की कोशिश हम कर रहे हैं. However, they have tested only saturated vapors of VOCs for device fabrication. Sensing VOCs at PPP or PPB level is very much needed. मतलब हमने क्या किया, पहले कुछ sentences में उन्होंने क्या किया ये बताया, prominent result बताए, and then at the last statement हमने बताया कि उन्होंने जो किया है उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ shortcomings है. Because unless you identify some shortcomings or loopholes in each and every paper, you will not be able to inculcate novelty in your investigation. तो हर पेपर, मतलब after reading each and every paper, you will have to write this paragraph. लेकिन आपको मैं बताऊं, एक पैराग्राफ लिखने के लिए आपको कम से कम 10 पन्ने लिखने पड़ेंगे. Then and then only you will be able to write this. How to do that? That I am going to tell you. And then in the references list, this is how you can write the references list. उसमें क्या होगा, पहले नेम ऑफ द ऑथर्स होंगे, then title of the paper and the details of the journal. So this is how
list of references need to be included in the list of in the list of papers need to be included in the list of references. Then उसके बाद होगा फाइन ट्यून टॉपिक. तो पहला टॉपिक क्या था, ब्रॉड टॉपिक क्या था, गैस सेंसर. अब फाइन ट्यून क्या, बाय रिव्यूइंग वेरियस पेपर्स हमने क्या किया, उसको फाइन ट्यून किया. तो अभी देखिए फाइन ट्यून टॉपिक क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर फंक्शनलाइज SWNTs फॉर डिटेक्शन ऑफ एरोमेटिक गैसेस. दिस इज लाइक मोर लाइक स्पेसिफिक टॉपिक. ब्रॉड टॉपिक क्या था, गैस सेंसर, काफी ब्रॉड था, लेकिन वहां पर हमने मटेरियल क्या यूज करना था, कौन से गैसेस डिटेक्ट करने थे, ये कुछ हमने लिखा नहीं था. बट while going through literature, while going through research paper, I came to know that this could be a good option for me to undertake in my research project, right? So therefore my topic, fine tune topic, would be organic conducting polymer functionalized SWNTs for detection of aromatic gases. मतलब मेरे materials क्या होंगे, SWNT, and उसको मैं SWNT, I'm going to functionalize SWNT with organic conducting polymer for detection of aromatic gases, BTEX, right? Hypothesis क्या होगा मेरा, you can see proposed work deals with functionalization of SWNTs by organic conducting polymers for detection of BTEX. मतलब एक पैराग्राफ होगा या सेंटेंस होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि मुझे क्या मैं करने वाला हूं. The proposed sensor will have lower detection limit of each of BTEC gases at par with OSHA PEL, with response time and recovery time of less than 30 and 40 seconds respectively, stability of at least 60 days, sensitivity for more than 60%, and selective to BTEX only. So first sentence is what I am doing, and next sentence is what I am expecting. Truly speaking, in hypothesis, it would be better to have different paragraph rather. First paragraph would be what he will be doing. Second would be what exactly you are expecting. And third, which I have not included here, why you are expecting that. Some technical details, not pages after pages. It's only like maybe one paragraph having 3-4 lines. That much technical, very short technical details can be included in hypothesis. And on the basis of that, this could be objectives. Objectives क्या होंगे? Preparation of, this is example के तौर पे आपको बता रहा हूँ, preparation of interdigitate electrode on SiO2 substrate having submicron gap between microelectrode. तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको पहले क्या करना है. What should be your first step? तो फर्स्ट स्टेप मेरी ये होगी कि इलेक्ट्रोड मैं तैयार करूंगा. देन अलाइनमेंट ऑफ SWNT, क्योंकि मुझे सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब यूज करने हैं, तो आई विल बी अलाइनिंग SWNT. देयरफॉर सेकंड स्टेप है अलाइनमेंट ऑफ SWNTs between 2 microelectrode. Third is functionalization, क्योंकि मुझे functionalize करना है. So functionalization of SWNT by organic conducting polymer. तो क्या हुआ, पहला स्टेप था मेरा, इलेक्ट्रोड मैंने तैयार किया, फिर SWNT उसके ऊपर रखे, उसको मॉडिफाई किया. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट वुड बी कंफर्मेशन ऑफ मटेरियल. जो मटेरियल मैंने वो इलेक्ट्रोड के ऊपर रखा है, whether I end up with the same material or no. So for that purpose, I would like to go for structural, spectroscopic, electrochemical, electrical, and morphological characterization of both SWNTs as well as OCP functionalized SWNT, bare SWNT and functionalized SWNT. ये सब होने के बाद क्या होगा? It will be like confirm for me that yes, I got the same result, or the same material which I was expecting. And then last would be evaluation of sensing properties of OCP functionalized SWNT devices for detection of BTEX. तो ये होगा मेरा actual sensing detection properties, sensing properties को evaluate करना, study करना in detail. Which material? OCP functionalized SWNT devices, right? अब किस टेक्निक, these are the objectives, लेकिन किस मेथड से मैं करने वाला हूँ वो इसमें लिखा है. जैसे कि SiSO जो इलेक्ट्रोड मुझे प्रिपेयर करना है, that I am going to do with photolithography. Okay, ये यहाँ पर मेथड दिए, preparation of interdigitate electrode on SiSO2 substrate having submicron gap between 2 microelectrode by photolithography method. Alignment of SWNT between 2 microelectrode by AC dielectrophoretic alignment. Alignment इस मेथड से करूंगा. Functionalization by a charge control potential static deposition method. मतलब I will be like in methodology, I am trying to mention the different methods which I am going to use, and similarly different methods for characterization of my materials. And last one is evaluation of sensing properties of OCP functionalized SWNT devices for detection of BTEX by chemiresistive and chempec techniques. So these are the two different modalities I will be using for detection of gases. So this is how the methodology can be done. And expected outcome क्या होगा? जैसे मैंने बताया कि जो second paragraph था मेरा hypothesis में, so that paragraph I have copy pasted here. Proposed sensor will
have lower detection limit of each BTEX gases at par with OSHA-PEL, with response and recovery time less than 30 and 40 seconds respectively, stability of at least 60 days, sensitivity more than 60%, and selective to BTEX gas. This is what I am expecting at the end of my research project. And then list of references, जो research paper, जो 10 research paper आप देखोगे वो सभी की लिस्ट होगी, जो किताबें आपने फंडामेंटल पढ़ने के लिए यूज किए होंगे उसकी लिस्ट होगी, राइट? आपका जो रिपोर्ट होगा, because after doing this you will have to prepare report. That report need to be submitted to university and then you will have to make a presentation of this report. The report में क्या होगा? सबसे पहले title, then introduction, some fundamental topic, fundamental concept of gases, heavy metal ion, gas sensors, like materials and detection modalities, and all that can be included in introduction. And literature review at national level, gaps in existing research at national level आपको identify करने हैं कि gaps, shortcomings का मतलब क्या हो? gap, जो research बाकी लोगों ने किया है उसमें gap क्या थे, what kind of lacunas they have at national level as well as international level. Accordingly, you will be able to draft the statement of proposed problem, scope of the research work, significance of your work that need to be written, and then hypothesis I have already mentioned, objectives I have already mentioned, methodology, expected outcome, this I have already mentioned. Next point would be plan of work. Plan of work मतलब एक साल में आप कैसा distribute करेंगे, मतलब आपके पास होगा एक साल entire, right? Third semester and fourth semester, how you are going to plan your work, right? That can be written like objectives and कितना समय लगेगा. Second objective, how many days or how many months you will be taking, and then list of references. So this is how you will have to write your report. Now I am going to tell you how to read a scientific paper, because that is going to be very, very important, right? Now, whenever you will be reading scientific paper, researchers are going to read scientific papers for a number of reasons. Like one of the reasons could be you will have to do the literature review for your master research project जो आप कर रहे हो, right? वो करना है आपको, literature review करना है, आपका topic fine tune करना है, फॉर्मुलेट करना है, इसीलिए आपको 10 रिसर्च पेपर जो हमने बताया 10 रिसर्च पेपर आपको पढ़ने हैं. दैट कुड बी वन रीजन. अदर कुड बी यू आर डूइंग पीएचडी, राइट? तो पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना है. थर्ड कुड बी आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो एमएससी प्रोजेक्ट के लिए या पीएचडी के लिए, लेकिन आपका जो नॉलेज है उसको अपडेट करना है, राइट? न्यू फील्ड जो आपको एक्सप्लोर करना है उसको अपडेट करना है. फॉर दैट पर्पस यू कुड डू इट. नाउ ट्रूली स्पीकिंग, रीडिंग साइंटिफिक पेपर इज वेरी, वेरी क्रिटिकल. जो पढ़ाया नहीं जाता, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, बट fortunately in our research in our department and university we are teaching, because first semester was specifically dedicated for this only, how to read scientific paper. I have taken so many lectures on that. Although it is critical, but although it is rarely taught, but you are fortunate that you got a good training for that. Truly speaking, reading scientific paper is an art and it requires practice, rigorous practice. Because आपको पता है कि जब आर्ट की बात करते हैं तो if you really want to get expertise, you need to read, continuously do the practice. If you could do it, I'm sure you are going to become a expert person. And over the time, if you start doing it, over the time you will be, because आप देखिए सबसे पहले अगर आप कोई पेपर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है, आपको बड़ा टफ लगेगा. बट ओवर द टाइम्स you will continue to read fundamental aspect of your proposed topic, because unless you read fundamental aspect, unless you have the depth of understanding in your subject, you are not going to understand the terminology. And therefore over the time, if you start reading papers, if you start reading fundamentals, over the times you will be able to understand what kind of terminology which is being used, some theoretical aspect, commonly used words, and you will be more comfortable to read those papers. Now, paper पढ़ते समय क्या करना चाहिए? There should be 3-pass approach. You should follow 3-pass approach. 3-pass approach का मतलब क्या होता है कि आपको 3 बार पेपर को पढ़ना है. Like first pass क्या करना है? It gives you a general idea about the paper. Second pass help you to grasp the content of the paper in short, बहुत डिटेल में नहीं. And third pass help you to understand the paper in depth. इसका मतलब क्या होगा कि पहले पास में आपको जस्ट उसके तरफ देखना है, सेकंड पास में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है बट बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, एंड थर्ड you will be like able to understand that paper in depth. Now in first, what you will be doing in first part, read the title, abstract and introduction. Just scan it.
डोंट रीड थोरोली, बट देखिए कि क्या टाइटल है, क्या ऑब्स्ट्रैक्ट है। ऑब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट में यूजुअली ये लिखा होता है कि व्हाट दे हैव डन, हाउ दे हैव डन एंड व्हाट दे हैव गॉट, मतलब क्या काम किया है, कैसे किया है और क्या रिजल्ट मिला है। दैट इज गोइंग टू बी, यू कैन गेट इट फ्रॉम ऑब्स्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन पढ़िए, लुकिंग एट द फिगर, फिगर देखिए, कैप्शन देखिए, राइट। नोटिंग सेक्शन हेडिंग आप थोड़ा सा केयरफुली देखिए, so that you will be able to understand what kind of content you have. At the end you refer the conclusion and bibliography. conclusion देखिए कि क्या क्या उन्होंने किया है, and references देखिए कि कहां से निकाले। मतलब क्या है कि आपको क्विकली एक स्कैन करना है कि what is title, what is abstract, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन का थोड़ा पढ़िए कि उन्होंने नॉवेल्टी कैसे मेंटेन की, राइट, नए रिजल्ट क्या है, राइट, कहां पर बाकी लोगों का रेफरेंस उन्होंने लिया, कैसे लिया, राइट। फिगर्स देखिए, उसके कैप्शन देखिए, थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे आप देखिए, कंक्लूजन देखिए उन्होंने क्या निकाला है, देन बिब्लियोग्राफी देखिए। दिस इज व्हाट you are going to do in first pass. Now whenever you will be doing first pass, you remember 5 C's. What are those? Category, context, correctness, contributions and clarity. कैटेगरी मतलब क्या है, व्हाट टाइप ऑफ पेपर इज दिस। आपको देखना पड़ेगा, जब भी आप जब पहली बार आप स्कैन करोगे पेपर, आप देखोगे कि ये पेपर किस टाइप का है। इज इट एक्सपेरिमेंटल पेपर, इज इट रिव्यू पेपर, वेदर इट इज एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, वेदर इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम रिसर्च प्रोटोटाइप। ये क्यों जरूरी है, बिकॉज ये स्कैन आपके लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास मान लो 10 पेपर आपको करने हैं, बट फॉर 10 पेपर यू विल हैव टू रीड, यू विल हैव टू गो थ्रू, यू विल हैव टू डाउनलोड मोर देन मे बी अराउंड 20-30 पेपर। उसमें से शॉर्टलिस्ट करना है आपको। तो शॉर्टलिस्ट के लिए पहला जो सी है कैटेगरी ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट होगा कंटेक्स्ट, which other papers is related to, मतलब इस पेपर से बाकी कौन से पेपर रिलेटेड है। which theoretical basis were used to analyze the problem, जो प्रॉब्लम इन्होंने अंडरटेक किए, क्या theoretical basis इन लोगों ने यूज किया, ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। करेक्टनेस भी देखना है, do the assumptions appear to be valid, इन लोगों ने जो क्लेम कर रहे हैं ये क्या वैलिड है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि ये कोई ऐसा एरा पेपर होगा जिसमें उनके assumption जो है आपको वैलिड नहीं दिखाई देंगे। So you should not choose that paper because you must be very selective. You should be very selective to choose the paper. Contribution देखिए next. What are the prime contribution of this investigation? ये जो investigation क्या इसके contribution है, technical contribution क्या होंगे to the scientific field? That is going to be very very important क्योंकि वो अगर आप नहीं समझेंगे, क्योंकि वो पेपर अगर impactful नहीं रहा, it is not going to be useful for you. Then clarity. Is the paper well written in terms of English as well as in terms of scientific argument? तो कंटेंट, राइट, देखिए कि क्लैरिटी कैसी है। अगर ये 5 सीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो फर्स्ट स्क्रीनिंग आप करोगे, फर्स्ट स्क्रीनिंग करके आपको कुछ पेपर आपको फेंकने पड़ेंगे, सभी के सभी पेपर आप सेकंड और थर्ड पास के लिए नहीं लेकर जाओगे। मान लो आपने 10 पेपर यू पहले डाउनलोड किए, उसमें से मे बी 1 or 2 पेपर यू विल बी एबल टू शॉर्टलिस्ट और स्क्रीन बाय फॉलोइंग दिस approach, right? So category, context, correctness, contribution and clarity. Then you can have this literature tracker. आप देखिए कि इसमें ट्रैकर में आप देखेंगे कि पहला पेपर का नाम है, उसके बाद में पब्लिकेशन डेट है, साइटेशन डिटेल है, जर्नल का नाम है, उसका DOI नंबर्स है, PDF उसका जो PDF नेम था वो है, देन लिटरेचर टाइप क्या है, एंड देन व्हाट आर द की टर्म्स, कीवर्ड्स, राइट। ये सब ट्रैकर इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस टाइप का ट्रैकर अगर बनाओगे सो इट विल बी इजियर फॉर यू फॉर डॉक्यूमेंटेशन एट लेटर स्टेज। जब आप रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे सो इट विल बी इजियर फॉर यू, सो इट इज बेटर टू हैव दिस ट्रैकर। फर्स्ट पास हो गया। ये फर्स्ट 5 C's को देखकर आपको पता चलेगा कि वेदर दैट पेपर शुड बी सिलेक्टेड फॉर सेकंड पास और नॉट, राइट। ऑल पेपर शुड नॉट बी सिलेक्टेड फॉर सेकंड पास, सभी के सभी नहीं करना है। तो आप उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, स्क्रीन करेंगे, एंड देन ड्यूरिंग सेकंड पास व्हाट यू विल बी डूइंग, रीड द पेपर विद ग्रेटर केयर बट इग्नोर डिटेल्स सच एज प्रूफ। आप क्या करोगे, अभी बहुत अच्छे केयरफुली पेपर पढ़ोगे, लेकिन हर चीज का प्रूफ आप ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे सेकंड पास में, वो आप थर्ड पास में करेंगे। रीड abstract, इंट्रोडक्शन, prominent reasons and conclusion carefully. आपको अभी पहले जो है आप ऊपर पढ़े थे, now you will be reading it very carefully. abstract आप केयरफुली देखिए, इंट्रोडक्शन आप केयरफुली देखिए, prominent reason आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए, क्योंकि आपको अभी ढूंढना पड़ेगा कि डिसाइड करना पड़ेगा कि whether this paper should go for third pass or not. क्योंकि कुछ पेपर जो है आप फर्स्ट पास से आप पास करोगे, सेकंड पास में उसको आप फेल करोगे, राइट। योर ऑल पेपर शुड पास थ्रू all three pass, right? Then look carefully the figures, diagram, other illustration of the paper. Pay special attention to graph. ग्राफ में आप केयरफुल देखिए कि उन्होंने सही निकाले क्या।
रेलेवेंट मार्क रेलेवेंट रेफरेंसेस फॉर फर्दर रीडिंग, मतलब आप जो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होंगी आपको क्रॉस रेफरेंसिंग भी करनी पड़ेगी। क्रॉस रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस पेपर है उसमें से कुछ पेपर आपको डाउनलोड करके पढ़ने पड़ेंगे, तो वो आप मार्क करिए उसके ऊपर। एंड देन राइट ब्रीफ समरी ऑफ द पेपर, जैसे मैंने बताया ना कि वो लिखने के लिए आपको 10 पन्ने लिखने पड़ेंगे, तो आप ब्रीफ समरी लिखिए यहाँ पर अभी सेकंड पास में। नोट उसमें फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, कीवर्ड्स, की रिजल्ट्स, थ्योरी क्या यूज किया, मटेरियल्स क्या यूज किए, कंक्लूजन्स क्या है, फ्यूचर वर्क उन्होंने क्या बताया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिटिक्स। आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि शॉर्टकमिंग्स क्या है। ये सब आप बुलेट फॉर्म में लिखेंगे सेकंड पास में, आप बुलेट फॉर्म में, क्योंकि डिटेल लिखते बैठोगे तो कितने लिखोगे आप, तो सेकंड पास में ये सब पॉइंट जो है बुलेट में लिखोगे। एंड देन यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर दिस शुड गो फॉर सेकंड पास। उसके लिए कुछ सवाल होंगे, आंसर होंगे, मतलब सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर आपको मिलते कि आपको देखना पड़ेगा। तो वो आंसर को किस बेसिस पे होंगे, सवाल, ऑब्जेक्टिव्स, कीवर्ड, पास्ट वर्क, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स एंड इक्वेशंस, फ्यूचर वर्क एंड इम्प्लीकेशन एंड रेफरेंसेस। ये सब पॉइंट जो है ना, इसको सामने रखते हुए कुछ सवाल आपको करने पड़ेंगे। व्हाट आर दोस क्वेश्चंस, व्हाट वाज रिसर्च क्वेश्चंस, ओके, इस प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम क्या था, इस पेपर में क्या प्रॉब्लम इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इज दिस टाइटल पॉसिबल वैल्यू टू माय स्टडी, ये जो पेपर है क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इफ सो व्हाई डू आई थिंक सो। अगर आपको लगता है कि ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, आपको सवाल करना पड़ेगा। व्हाट इज द ऑथर ऑफ दिस पेपर अटेम्प्टिंग टू कन्विंस मी, मतलब जो आपको क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, और क्या आप कन्विंस हो गए, जो ऑथर बता रहे, वो जो कंसेप्ट बता रहे, वो जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो पेपर में उन्होंने डालने की कोशिश की, क्या आप कन्विंस हो उससे। इफ नॉट, which part of this paper is of most interest to me and why that part, आपको देखना पड़ेगा कि उस पेपर का कौन सा पार्ट ऐसा है कि जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब सब पूरा पेपर तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट कोई सेक्शन है क्या जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। व्हाई दे हैव चूजन दिस अप्रोच, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल जो है उन्होंने किया, वो अप्रोच उन्होंने क्यों चूज किया, आपको सवाल करने पड़ेंगे। डू आई एग्री विद द ऑथर रीजनिंग, ऑथर ने जो रीजन दिया वो क्या आप एग्री करते हो। व्हाट डज ऑथर थिंक आर द इम्प्लीकेशन ऑफ देयर फाइंडिंग्स, आपको सवाल करने पड़ेंगे कि ये जो फाइंडिंग्स है उसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। डू आई एग्री विद ऑथर रीजनिंग फॉर दिस, ऑथर ने जो रीजनिंग दिया क्या मैं एग्री करता हूँ। व्हाट डज दिस पेपर कंट्रीब्यूट टू माय ओन थॉट्स ऑन माय ओन रिसर्च, जो रिसर्च प्रोजेक्ट मैं करना चाहता हूँ ये पेपर क्या उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा, यूजफुल रहेगा। थिंक अबाउट हाउ पेपर रिलेट टू योर रिसर्च एंड देन डिसाइड वेदर इट इज कोर पेपर फॉर यू और नॉट। तो ये सब सवाल क्रिएट करके आंसर आप ढूंढने की कोशिश करिए एंड डिसाइड करिए कि वेदर दिस पेपर कुड बी गुड फॉर यू फॉर थर्ड पास और नॉट। इफ यस देन ओनली यू शुड गो फॉर थर्ड पास, अदरवाइज गेट रीड ऑफ दैट पेपर। इसलिए यहाँ पर आपको डिटेल नोट्स नहीं निकाले, बुलेट पॉइंट में लिखना है। व्हाट इज थर्ड पास, थर्ड पास इज टू फुल्ली अंडरस्टैंड द पेपर। फुल्ली अंडरस्टैंडिंग मतलब आपने क्या किया, अभी फर्स्ट पास में आपको पास हुआ पेपर, आपको लगा कि यस दिस पेपर कुड बी यूजफुल फॉर मी। सेकंड पास में आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा लेकिन शॉर्ट में पढ़ा, फिर भी आपको लगा कि यस इट कुड बी गुड फॉर यू। नाउ यू नीड टू रीड दैट वेरी थोरली। ऑब्स्ट्रैक्ट देखिए कि एग्जैक्टली क्या है। इंट्रोडक्शन में हाउ दे हैव इंट्रोड्यूस नॉवेल्टी, what kind of societal relevance they try to introduce, right? Atom to virtually re-implement the paper, आप सोचिए कि क्या ये पेपर को मैं re-implement कर सकता हूँ। कंपेयर रिक्रिएशन विद एक्चुअल पेपर, मतलब आप जो है एक्चुअल पेपर में क्या दिया और आप जो रिक्रिएट करना चाहोगे वर्चुअली, वो आप कंपेयर करिए कि व्हाट आर द गैप्स। अंडरस्टैंड द इनोवेशन एंड हिडन फेलिंग्स एंड अजम्पशन। इनोवेशन क्या होगा जब आप वर्चुअली उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए कि क्या आप आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम नॉवेल्टी, are you going to identify some failures on this paper, are you going to identify like what will be assumption for your own investigation। क्योंकि आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो पेपर आप रेफर कर रहे हो, on the basis of that you need to observe, you need to identify some shortcomings, some lacunas from this paper, and so that you will be able to do that, you will be able to address those issues in your investigation so that novelty can be inculcated। जब मैं रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, वहां पर this is going to be very very crucial। Identify and the challenges of every assumption in every statement।
उन्होंने जो जो भी लिखा है, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस वहां पर है, you need to identify, because unless you do this, you are not going to inculcate novelty in your paper and jot down ideas for future work. So future work क्या हो सकता है on the basis of this paper. So ये सब आप जब डिटेल में करने की कोशिश करेंगे, तो then only you will be able to do a systematic literature review. Next होगा, you should be able to reconstruct the entire structure of the paper. ये सब पढ़ने के बाद, डिटेल नोट्स निकालने के बाद, ये थर्ड पास में कम से कम एक पेपर के 5 to 10 पेपर्स के नोट्स आपके होने चाहिए, 5 to 10 पेजेस के नोट्स होने चाहिए. आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, आपको उसके वीकनेसेस क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये भी आइडेंटिफाई करना है. एंड पिन पॉइंट द इम्प्लिसिट assumption, missing citation to relevant work and potential issues with experimental or analytical techniques. मतलब जो भी उन्होंने experimental technique use किए, जो भी analysis के use किए, what are the shortcomings, what are the missing point that you need to identify. These pass, like with this approach, if you are doing this, अगर आप senior research beginners हो, तो it will take 5-6 hours for one paper, at least 5 to 6 hours for one paper. And if you are experienced researcher, then maybe like in 1 hour you will be able to do this. So at the end, in summary, what you will be doing, in summary, you will be adopting 3 pass method. पहले पास में जैसे मैंने बताया कि आप मोटे मोटे तौर पे आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि whether it is going to be good for you for your research investigation, and then if it is yes, then you will be going for second pass. सेकंड पास में आप थोड़ा ज्यादा डिटेल पढ़ोगे, बहुत ज्यादा क्रिटिक्स नहीं करेंगे आप, लेकिन फिर भी आप बुलेट पॉइंट में उसके नोट्स निकालोगे, जैसे कि मैंने बताया. एंड देन यू विल बी रेजिंग मेनी क्वेश्चंस, राइट? एंड इफ यू कैन गेट दोस आंसर टू दोस क्वेश्चंस सेटिस्फैक्टरी, देन ओनली you should select that paper for third pass. And third pass में आप डिटेल नोट्स निकालोगे, and then only you will be able to do the complete review of single scientific paper. So this kind of analogy you will have to adopt for all 10 papers, and once you do that, you will be able to draft, you will be able to write that review report, which you will have to submit